Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? I hope that you all are fine and having good time at your home. Today is 28th of April 2021. Day is Wednesday and you are having your science lesson with me. We have started chapter number 3 about the plant world, and in this chapter you are learning about the different parts of the plant. In your previous video of science, we have talked about the different parts of the plant. Now you have to tell me what are the different section of the plant that we have studied. Hania, can you give the answer of this question? What are the parts of the plants? Very good, Hania. Flowers, seeds, stem, leaves, roots. These are the parts of the plant. And we have studied that the roots provide support to the plant. They get nutrients from the soil. Leaves is the place where food is being produced. Stem is providing the support to the plant, strength to the plant. And seeds are helping the plant, helping to grow a new plant. And seeds are present inside the flower. This is what we have studied in our yesterday's video of science. With that, we have also started different processes that are happening in plant. So name of the different processes that are occurring in plants are transpiration, transportation, photosynthesis and reproduction. ये 4 प्रोसेसेस प्लांट्स में हो रहे होते हैं और मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी, जैसे ह्यूमन बॉडी में हर ऑर्गन कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करता है और उसका कोई प्रोसेस होता है, एक मैकेनिज्म होता है, एक पूरे प्रोसीजर से वो परफॉर्म कर रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह प्लांट्स में भी डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं और उनको हम प्लांट प्रोसेसेस कह रहे हैं। ठीक है, प्रोसेस इज अ काइंड ऑफ फंक्शन और अ परफॉर्मेंस दैट इज बीइंग डन बाय द प्लांट। ओके, हमने कल की क्लास में पढ़ा था अबाउट ट्रांसपायरेशन. सो हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट द ट्रांसपायरेशन टुडे? Zayan, you have to tell what is transpiration. Very good, Zayan, you are trying to give the right answer. The transpiration is the process in which the water is evaporating. वाटर का स्टीम में चेंज हो जाना इज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। और जब ये प्रोसेस प्लांट्स में हो रहा होता है, लीव्स में हो रहा होता है, हम इसको ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ठीक है, आई हैव ऑल्सो रिटन इट इन फ्रंट ऑफ इट, ट्रांसपायरेशन अ प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. Also it is happening because of the stomata. The diagram of the stomata is here. The hole is open and by the opening and closing of stomata the water is able to evaporate. So when the water is evaporating from the leaves in the plant, this process is what we call transpiration. So this was a revision about the previous topic. Today we will be continuing with the same topic, plant processes, but आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे about the transportation. So our today's main topic will be about the transportation. ओके, ट्रांसपोर्टेशन, आप इस वर्ड से इसको अंडरस्टैंड करो, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। ट्रांसपोर्ट का क्या मीनिंग होता है? टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना। ठीक है, ओके, अब हमने रूट्स में ये लर्न किया था दैट रूट्स टेक द फूड और न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। अब ये बात तो क्लियर है कि वेट अ सेकेंड, we know that the roots will take the food from the soil. यहाँ ज़मीन से वो किसी जगह से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे, बट हाउ दिस फूड एंड वाटर विल मूव अप, वो रूट से ऊपर तक कैसे जाएगा? इस प्रोसेस को जिसमें फूड, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल ग्राउंड से पूरे प्लांट में मूव करते हैं, इसको एक्चुअली हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। द फूड ट्रांसपोर्ट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन. Food or water transport process is called transpiration. But how it is happening? This is happening with the help of tubes. Plants में जगह जगह पर tubes होती हैं and there are 2 types of tubes. I am making it on the board. These tubes are like this. Let's suppose this is the stem of the plant. ये plant का stem है, इसमें इस तरह की tubes होती हैं. Some are like this and some are like this. ओके,
अब मैं फिर से बना रही हूँ, लाइक इसको लॉन्ग कर देते हैं. दिस इज़ द होल स्टेम. हम एग्जाम्पल के तौर पर इसको अंडरस्टैंड करें. दिस इज़ द स्टेम एंड दीज आर द ट्यूब्स. The one that are thin in size and the other that are thick in size. आप देख रहे हो इसको मैंने बहुत पतला सा बनाया और इसको मैंने थोड़ा सा मोटा करके बनाया है. If I take it out, one I am making like this. एक मैं इस तरह से बना रही हूँ और एक मैं इस तरह से बना रही हूँ. आपको पता है कि प्लांट्स में वाटर और फूड दोनों चीज़ें मूव हो रही होती हैं. ओके, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्यूब. वन ट्यूब इज़ ट्रांसपोर्टिंग द वाटर जो थिक साइज में होती है. This one, it is transporting the water. Water को transport करती है. I am writing water here. And the other that is thick in size. The other that is thin in size, that is transporting the food. वो food को transport कर रही होती है from roots to all the parts of the plant. Okay, अब ये तो आपको पता चल गया कि plants में two types की tubes होती है. One is responsible for transporting the food to the plants or parts of the plant and other is responsible for transporting the water. अब जो food transport कर रही होती है उस tube का नाम होता है phloem. And the one that is transporting water, that is called xylem tube. इसको हम xylem tube कहते हैं. I am writing it here. इसको हम xylem tube कहते हैं. xylem tube का काम होता है water को transport करना और phloem का काम होता है food को transport. So grade 4, what we have learned in transportation, it is the food transport system in plant, food and water transport system in plant. और फूड कैसे या फिर वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है विद द हेल्प ऑफ ट्यूब्स. देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्यूब. वन इज़ कॉल्ड फ्लोएम ट्यूब जिसका काम होता है ट्रांसपोर्ट फूड करना एंड द अदर इज़ कॉल्ड जाइलम दैट ट्रांसपोर्ट द वाटर. ये दोनों ट्यूब्स प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं. रूट्स में से वाटर और फूड को इनटेक करती हैं एंड देन दे ट्रांसपोर्ट ऑल अराउंड द प्लांट. ये पूरे प्लांट में इसको ट्रांसपोर्ट करती हैं विद द हेल्प ऑफ दीज ट्यूब. जैसे आपने ह्यूमन बॉडी में वेन्स के बारे में पढ़ा हुआ है, आर्टरीज के बारे में पढ़ा हुआ है, नर्व्स के बारे में पढ़ा हुआ है, बिल्कुल इसी तरह प्लांट्स में फ्लोएम और जाइलम की ट्यूब्स होती हैं. एक का काम होता है फूड को लेकर जाना जिसको हम फ्लोएम कहते हैं और सेकंड का काम होता है वाटर को लेकर जाना पूरी प्लांट बॉडी में जिसको हम जाइलम कहते हैं. और ये जो वाटर और फूड का ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है फ्लोएम और जाइलम के थ्रू, इसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं. ओके, एंड दिस वॉज द सेकेंड प्रोसेस ऑफ द प्लांट जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं. दैट इज इंक्लूडिंग फ्लोएम एंड जाइलम. Phloem is involved in transporting of food, xylem is involved in transporting of water. Okay, there is an interesting thing that I want to share. There is an interesting thing that I want to share with you, that if you want to know the age of the plant, you know plants are also having their age. How we get to know that what is the age of that particular plant? Can you make a guess, like how you will get to know what could be the age of that tree? हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़े बड़े trees होते हैं जिनका stem बहुत ज़्यादा strong होता है. How we are able to know कि that what could be the age of that plant? Let me tell you. We can get to know by the rings that are present in the plant. जब हम किसी plant को stem को cut करते हैं, let me just draw it on the board and then explain to you. Let's suppose we are having a very old tree और उसका बहुत thick जो है वो stem है. ठीक है, अब आप इस stem को आप इस स्टेम को क्या करोगे, यहाँ से कट करोगे. वंस यू हैव कट इट डाउन फ्रॉम दिस, आपने इसको यहाँ से कट कर दिया, क्या होगा, इस स्टेम के ऊपर इस तरह की रिंग्स होती हैं. उसकी जो स्टेम होता है उसमें इस तरह की रिंग्स बनी होती हैं. By counting the rings of the tree, you will get to know कि what could be the age of the tree. एक रिंग जो है वो एक साल में बनती है. लेट्स सपोज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रिंग, अगर हम इस रिंग की बात करें, ये जो सर्कल है इसको बनने के लिए एक साल का टाइम रिक्वायर होता है. ओके, टू मेक वन रिंग ऑन द स्टेम इट्स टेक 1 year टाइम. सो
by counting the rings we'll get to know what could be the age of the year. So what will be the age of this plant? 1 2 3 4. This tree will be 4 years old. Why? Because it's having 4 rings, and we know that each one ring take 1 year time to complete. एक रिंग को कंप्लीट होने में 1 साल का टाइम लगता है, दूसरे को 2 साल का, तीसरे को 3 साल का और फोर्थ वाले को 4 years का. So total will be 4 years, and this is how we get to know that what is the age of the plant. That was an interesting thing that I thought to share with you. So this is all about our today's topic about the transportation. Okay, हम plant processes में already 2 processes के बारे में बात कर चुके हैं. That was transportation and transpiration. We have talked about transportation and transpiration. Transpiration is the process in which the water is evaporating. मैंने आपको बताया कि जैसे water evaporation के बारे में हमने पढ़ा था, water cycle में water evaporation के बारे में पढ़ा था. What happened in that? The water is changing into steam. इसको हम transpiration कहते हैं. और जब फूड जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहा होता है, इसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं. दैट वाज द सेकंड प्रोसेस. अब हम थर्ड के बारे में बात करते हैं. दैट इज रिप्रोडक्शन. व्हाट इज द नेम ऑफ द टॉपिक? रिप्रोडक्शन. ओके, सी क्लास 4 यू हैव सीन दैट एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज हैविंग पेयर. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का पेयर होता है. जैसे ह्यूमंस में भी 1 गर्ल 1 बॉय, एनिमल्स में भी 1 मेल 1 फीमेल. मेल हम बॉय के लिए यूज़ करते हैं और फीमेल गर्ल के लिए यूज़ करते हैं. जैसे आपने कैट्स में भी देखा है ना, एक बॉय होती है और एक गर्ल होती है. ऐसे बर्ड्स में भी होता है, एक फीमेल एक मेल. तो अल्लाह ताला ने हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को पेयरिंग में बनाया हुआ है. ठीक है, एक लड़का होता है एक लड़की होती है. ठीक है, प्लांट्स में भी ऐसे ही होता है. प्लांट्स में भी एक मेल होता है और एक फीमेल होता है. ठीक है, और रिप्रोडक्शन कब स्टार्ट होती है? रिप्रोडक्शन एक्चुअली क्या प्रोसेस होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं, उनके और न्यू बेबीज प्रोड्यूस होते हैं, जिससे और ज़्यादा जनरेशन बढ़ती है. जैसे काउस के बेबीज़ होते हैं, जैसे एनिमल्स के बेबीज़ होते हैं, बर्ड्स के बेबीज़ होते हैं, ह्यूमंस के बेबीज़ होते हैं, प्लांट्स के भी बेबी होते हैं. बेबी प्लांट देखा मैंने, बहुत छोटा सा होता है, फिर वो ऐसा ऐसा ग्रो करता है. ये जो न्यू बेबीज आ रहे हैं, जो न्यू जनरेशन होती है, दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्शन. ये किस प्रोसेस के थ्रू हो रही होती है? बाय रिप्रोडक्शन. अब रिप्रोडक्शन हम अंडरस्टैंड करते हैं. रिप्रोडक्शन एक्चुअली फ्लावर्स में होती है. रिप्रोडक्शन कहाँ पर होती है? फ्लावर्स में होती है. एंड आई विल शो यू दैट हाउ अ फ्लावर लुक लाइक. आई गॉट अ वेरी Okay, grade 4, I have drawn the diagram of the flower on board. This is how a flower look like. Obviously it's not look like that, but I have drawn it on the board to let you understand the parts of the plant. हम flower के parts के बारे में understand करते हैं और फिर reproduction को continue करते हैं. flower के different parts होते हैं. These are the petals of the flowers. और आपने देखा होगा हर flower के नीचे एक green color का part होता है. See, दिस इज अ फ्लावर. ये उसकी पेटल्स हैं और ये जो नीचे ग्रीन आपको पार्ट नजर आ रहा है, इसको हम सेपल कहते हैं. व्हाट वी से इट? दिस वन दैट इज प्रेजेंट इन अंडर द पेटल्स इज कॉल्ड सेपल. और ये जो आपको रेड कलर में नजर आ रही हैं, दीज आर द पेटल्स. ठीक है, और इसके अलावा फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट इकट्ठे होते हैं एक ही फ्लावर के ऊपर. ठीक है, ये मैंने एक रोज प्लांट लेट्स सपोज बनाया है. तो दिस वन इज कॉल्ड द फीमेल पार्ट एंड दिस वन इज कॉल्ड द मेल पार्ट. इसको फीमेल कहते हैं और इसको मेल पार्ट कहते हैं. ठीक है, अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि फीमेल पार्ट के क्या सेगमेंट्स होते हैं और मेल पार्ट के क्या सेगमेंट होते हैं. इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया? दीज आर द पेटल्स एंड दीज वन दैट आर इन ग्रीन कलर, दे आर सेपल्स. ओके, as I have written it on the board as well, that this one is the female part and this is the male part. This is petal and this is sepal. पेटल और सेपल के बारे में तो बिल्कुल क्लियर है आपको. ठीक है, अब हम मेल और फीमेल पार्ट को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं. मैं इन दोनों को सेपरेटली ड्रॉ करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि व्हाट आर द अदर पार्ट्स दैट अ मेल एंड फीमेल आर हैविंग. ओके, आई एम drawing the diagram of male and female part again separately to let you understand it. This is how the female part look like. ठीक है,
अब इसकी डायग्राम तो ये होती है, बट इसके 3 पार्ट्स हैं. द वन दैट इज प्रेजेंट एट टॉप, इसको हम कहते हैं स्टिग्मा. दिस वन इज कॉल्ड स्टाइल, एंड द वन दैट इज प्रेजेंट ऑन द लोअर साइड इज कॉल्ड ओवरी. इसको हम ओवरी कहते हैं. सो टोटल हाउ मेनी पार्ट्स अ फीमेल सेक्शन इज हैविंग? फीमेल स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. दीज आर द पार्ट ऑफ द फीमेल सेक्शन. ठीक है, अब हम मेल के बारे में बात करते हैं. इट लुक्स लाइक दिस. ऐसा होता है नीचे से और ऊपर ये, और इसके ऊपर ये डॉट्स होते हैं जिसको हम पोलन्स कहते हैं. अभी मैं आपको दिखाती भी हूँ. दिस इलोंगेटेड पार्ट इज कॉल्ड फिलामेंट. यहाँ पे स्पेलिंग कंप्लीट नहीं होंगे. फिलामेंट, इसको हम फिलामेंट कहते हैं. और जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको एंथर कहते हैं. और फीमेल मेल में जस्ट 2 पार्ट्स होते हैं. द अपर वन इज कॉल्ड एंथर एंड द लोअर वन इज कॉल्ड फिलामेंट. और ये मेल पार्ट है. ठीक है, आई हैव रिटन इट मेल एंड दिस वन इज फॉर फीमेल. ओके, so can you say after me that how many parts a female is having? Stigma, style, ovary. And what about the male? Anther and filament. Okay, now let me show it to you from the flower. ये देखें, ये फ्लावर है और आप इसको देखो, ये इसका मेल पार्ट है, this one. अब आपको इसके ऊपर हल्के हल्के से ये येलो कलर के पोलन्स नजर आ रहे हैं. दिस इज व्हाट वी कॉल एंथर. इसको हम एंथर कहते हैं. और ये जो इलोंगेटेड पार्ट है दिस वन, इसको हम फिलामेंट कहते हैं. और इसके अंदर जो है वो फीमेल का पार्ट होगा जिसको हम ओवरी कहते हैं. इज इट क्लियर टू यू? आप जब भी कोई प्लांट देखते हो उसके अंदर आपको इस तरह के येलो या वाइट कलर के पोलन्स नजर आते हैं, वो मेल पार्ट्स के ऊपर होते हैं और जो बाकी चीज़ें होती हैं वो फीमेल की होती हैं. सो अ फ्लावर इज हैविंग 4 मेन पार्ट्स. This one is called petal. The one that is in green color is called sepal. The elongated part is called filament, and the one that is having over it is called anther. और यहाँ पर ovary female में क्या होता है? Stigma, style and ovary. So this was about the parts of the flower जो कि reproduction में involve होते हैं. अगर ये दोनों चीज़ें किसी फ्लावर में हो, वहाँ से न्यू सीड्स ग्रो करते हैं और फिर न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं. एंड वी हैव स्टडीड द थर्ड प्रोसेस ऑफ प्लांट दैट वाज अबाउट रिप्रोडक्शन. So this was all about our today's science lesson. We have studied about the different processes of plant. सबसे पहले हमने ट्रांसपायरेशन को रिवाइज किया जो इवेपोरेटिंग प्रोसेस होता है. फिर हमने ट्रांसपोर्टेशन को डिस्कस किया जो कि फूड और वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोसेस होता है. ट्रांसपोर्टेशन में वी हैव लर्न दैट प्लांट इज हैविंग 2 डिफरेंट टाइप ऑफ ट्यूब्स. एक को हम कहते हैं जाइलम ट्यूब और दूसरे वाले को हम कहते हैं फ्लोएम ट्यूब. जाइलम वाटर को अपटेक करती है और फ्लोएम जो है वो फूड को लेके जाती है एक जगह से दूसरी जगह. ठीक है, देन हमने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा. रिप्रोडक्शन प्लांट के वी हैव स्टडीड दैट रिप्रोडक्शन इज हैपनिंग इन द फ्लावर पार्ट. फ्लावर्स में होती है और फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. द पेटल्स, सेपल, फीमेल एंड मेल पार्ट. और जब हम फीमेल और मेल पार्ट को पढ़ते हैं वी हैव स्टडीड इट्स हैविंग स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, एंथर एंड फिलामेंट. स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी फीमेल पार्ट होते हैं और इनको सबको इकट्ठा हम पिस्टल कहते हैं. एंथर और फिलामेंट मेल पार्ट होते हैं और इनको हम इकट्ठा स्टेमन कहते हैं. दिस आई फॉरगेट टू शेयर विद यू बट यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि जो मेल पार्ट होता है उसको हम कलेक्टिवली फिलामेंट और एंथर को स्टेमन कहते हैं और फीमेल के ओवरी, स्टाइल और सिग्मा के पार्ट्स को पिस्टल कहते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. व्हाट यू आर सपोज टू डू, आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से वॉच करना है, कॉन्सेप्ट को गेन करना है. देन यू हैव टू गो थ्रू द रीडिंग ऑफ पेज नंबर 23 and 24. With that you are supposed to draw the diagram on the blank page of your science notebook just the way I have drawn it on the board. मैंने फ्लावर की डायग्राम ड्रॉ की है, आपने भी बिल्कुल इसी तरह इस फ्लावर की डायग्राम अपनी नोटबुक पे ड्रॉ करनी है. इसको अच्छे तरीके से लेबल करना है and you have to given the topic reproduction. So this is all about today that you are supposed to learn in the science lesson. You have to gain the concept, and if you are finding any kind of difficulty you can ask me on the WhatsApp group
or you can comment in the video link down below. So take good care of yourself, have a good time. See you in the next video with a new concept.